Varun Sharma is a much-loved entertainer in Indian cinema. Audiences adore him for his incredible comic timing as he draws laughter after laughter. He has been awarded for his comic roles on several prestigious platforms, and he continues to be sought after by filmmakers to add that much-needed dose of humor in their stories. Presenting Varun Sharma in a heart-to-heart with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. Thank you so much, Guruji. You know, it's such an honor to be here and to have this heart-to-heart conversation with you, Guruji. Thank you. Lovely. And I feel so fortunate, Guruji, that I had met you in Haryana with Drug Free India campaign में जहाँ पे था. But it was so, it's so nice to be here. Guruji, I have a lot of questions. My friends, my family, you know, we were all very excited when I told them, I mentioned that, you know, I'm getting this chance to speak to you. So if you would allow, can I just dive into my questions? And yeah. You can ask all the questions, but you know, I may not have answer for any one of them. What do you do? It is not possible. You have all the answers. So, Guruji, you know, my first question would be that, you know, emotions can run all over the place. How does one balance emotions, and how do you turn negative emotions into positive emotions? हाँ, ये तो बात है. देखो, when you stand in front of the light, you always cast a shadow, right? But if you keep looking at the shadow, shadow looks very big. You turn towards the light, you don't even see the shadow. ऐसे ही लाइफ में कई नेगेटिव इमोशंस आते हैं, आने दे, क्या है उन सब के नीचे जो है पॉजिटिव इमोशन छिपी हुई है, उसको खोज निकालें. उसकी परत को हटा के नेगेटिव उसको पॉजिटिव इमोशन को निकालें. Correct. Thank you. No, absolutely. And Guruji, this is a very personal question for me also. You know, is it important to cry? Is it important to vent out? You know, I've had few losses in my own life, so तब से ना मैं भी खुद रोया नहीं. And so, is it important to cry, to vent out? I mean, what is important is not to stop crying when it comes up. ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्त रोना बैठे, but when tears are welling up, you feel like crying, you should not block it, stop it. वो हम गलत करते हैं. हम समझते हैं अरे हम आदमी हैं, हम कैसे रो सकते हैं, मुझे रोना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए, क्या लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब फालतू है. All this is you know, unnecessary. But just be natural, be yourself. If you feel like crying, you cry. At the same time, you don't need to force yourself to cry. ऐसे नहीं है कि यार एक साल हो गया मैं रोया नहीं तो अभी जाके रो लेता हूँ थोड़ा सा. It shouldn't be like that. No. Guruji, I wanted to ask, anger, envy, jealousy, ये जो होते हैं ये सारे thoughts होते हैं कि emotions होते हैं? And I mean, how do you release yourself from such emotions? Because हम जब भी मतलब जितना भी कह लें कि यार हम किसी से jealous नहीं हैं, subconsciously कहीं ना कहीं पे thoughts आ जाते हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं. How do you tackle that? वरुण, पहली बात तो तुमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया. That is whether it is thought or emotion, तुमने खुद बता दिया emotions है. अब दूसरी बात है कि emotions क्या करें जब ये नहीं हटते नहीं है, कभी रह जाते हैं. जब किसी के प्रति हमें jealousy होती है, we don't feel good when we feel jealous about somebody. तो अब करें क्या, यही है ना प्रश्न. हाँ जी. हाँ, नहीं ये देखो, ये सहज है, ये सारे इमोशन जीवन में होते हैं. जीवन जैसे नवरस से भरा हुआ होता है. ये नहीं सोचना चाहिए ये सब कोई भाव होना ही नहीं चाहिए जीवन में. ठीक है, आ रहे हैं, मगर हम इन सब के कंट्रोल में नहीं आए हैं कि हाँ ये हमारे कंट्रोल में. इफ़ दीज इमोशंस आर अंडर योर कंट्रोल, इट इज़ ओके. कभी को देखते हो पेट में कुछ जेलसी होती है तो क्या करो, 2-4 गहरी सांस लो, छोड़ो और याद करो अरे मैं भी जाने वाला हूँ, ये भी जाने वाले हैं, सब चले जाएंगे. पर्दा तो गिरने वाली है.
ये समझ लिया। करेक्ट। देखो एज एन एक्टर आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर तो पूरा कंट्रोल में है ना। एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड विद डायरेक्टर तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है। अपना रोल प्ले करने में तुम्हें बड़ी आसानी रहेगी। कहीं कोई गलती भी हो तो डायरेक्टर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, कट करके फिर चालू करते हैं ना। रीटेक होता है ना। ऐसे हमें ये जान लेना चाहिए एक डायरेक्टर है जो कहीं हमने गलती भी कर ली तो वो रीटेक करने वाला है। तो डायरेक्टर तो हमारी अपनी है, उनका इंटरेस्ट भी है, हम अच्छे रोल करेंगे तो उनका इंटरेस्ट है ना। ऐसे ही एक शक्ति है, एक पावर है, ईश्वर है, वो ईश्वर का जिम्मेदारी बनती है कि हम सब सही सलामत रहे। बिल्कुल। अच्छा, और इसी के साथ ना गुरुजी मतलब वो कहते हैं ना कि गट को हमेशा फॉलो करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज फॉलो योर गट। ये गट क्या होता है गुरुजी? दो चीज होती है, एक गट होती है, एक गट्स होता है। गट्स तो तुम्हारे में बहुत है। अच्छा, गट फीलिंग जो है ना, कभी पेट में कुछ होता है, गुदगुदी होती है कि लगता है बुद्धि कुछ कहती है फिर भी अंदर से लगता है कि नहीं नहीं यार यही सच है, यही करना चाहिए, ऐसा लगता है ना कभी। करेक्ट। मन कुछ और करने के लिए सोचता है तो भीतर से हमें फीलिंग आता है नहीं नहीं यार ऐसा नहीं करूं, ये नहीं बनेगी बात, ये दूसरी चीज ऐसा करूंगा, इसी को गट फीलिंग बोलते हैं। करेक्ट। नहीं वही है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि माइंड कुछ और कहता है, हार्ट कुछ और कहता है, समझ नहीं आता किसकी बात सुने, क्या करे। कभी इसका कभी उसका, कभी उसका कभी इसका। मैं उस टाइम पे सीधा अपने मम्मी के पास चले जाता, मैं कहता हूँ मम्मी मेरे को समझ नहीं आ रहा, माइंड ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है, आप बताओ आप क्या कह रहे हो। तो जो मेरे मम्मी कहते हैं मैं वो कर लेता हूँ। अच्छा, तब तो हार्ट को फॉलो करता है, तब तो ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी इस टाइम पे जैसे लॉकडाउन चल रहा है और कई जगहों पे लॉकडाउन है, मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं जिनकी रिलेशनशिप बड़ी शेकी हुई है, बड़े ब्रेकअप हो रहे हैं, मिल नहीं पाए हैं, या फिर फोन पे एक वो जो दो शब्द है कोई भी कॉन्वर्सेशन में, और बताओ, इन्होंने बड़ी रिलेशनशिप तुड़वाई है। तो इससे तो क्योंकि कुछ बात नहीं होती करने के लिए, तो और बताओ और बताओ और बताओ होता रहता है। तो इस पूरे इस सिचुएशन में जहाँ पे लॉकडाउन है, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने तरीके से फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं, रिलेशनशिप्स पूरी शेकी है, उनके लिए अगर कोई एडवाइस मेरे दोस्तों के लिए जिनके ब्रेकअप हो रहे हैं या जिनके रिलेशनशिप्स थोड़े शेकी हो रहे हैं। देखिए मैं ये कहूँगा कि जो लॉकडाउन के टाइम में ना कि कारपेट के अंदर की धूल सब उड़ने लगती है ऊपर, तो हमारे भीतर पता नहीं कब से क्या क्या चीज़ें हमने दबा के रख दिया, सारे फ्रस्ट्रेशन एकदम उछलने लग गया। तो जब फ्रस्ट्रेशन उछलने लग गया तो बहुत नज़दीक के लोगों के ऊपर ही जाएगा, वो तो आसपास के लोगों। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी जो भी झगड़े जो भी होते हैं करो, अच्छे से झगड़े करना, उसमें कोई कसूर नहीं छोड़ना, मगर कोई निर्णय नहीं लेना उसको ऊपर, इसको सीरियसली नहीं लेना, बोलना ये रिहर्सल समझो, फाइनल टेक नहीं ये समझ लेना। तो उनको बोला ये सब ठीक है, मगर मैं ये भी कहता हूँ रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं तो टर्न बाय टर्न ले लेना, एक साथ दोनों मत झगड़ो। जिस दिन एक झगड़ रहे दूसरे चुप रहो, दूसरे दिन दूसरों को चांस दे देना, इस तरह से संभाल लेना। क्यों, एक असाधारण परिस्थिति में साधारणतया मनुष्य भी असाधारण हो जाता है, वो उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता। अब ये ऐसी परिस्थिति में उनका व्यवहार भी कुछ अजीब सा ही हो सकता है। कई लोगों को ऐसा हुआ है, चाहे वो एग्रेशन में आ जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली मत लेना, अभी आप भूल जाना। ये 2 महीने जो है ये वैसे जैसे कैंपिंग जाते हैं, तो कैंपिंग जाते हैं तो वहाँ जैसे रहना पड़ता है वैसे रहते हैं, तो घर आने के बाद ही तो नॉर्मल लाइफ होता है ना। ये समझ लेना ये कैंपिंग है।
तो बाद में सारी चीजें अपने करना चाहिए। करेक्ट। गुरुजी एक और सवाल था, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। मतलब जैसे मैं भी ना कई बार होता है, मैं थोड़ा मतलब जिस तरह से मेरे किरदार हैं एकदम मैं आउट देयर वाले किरदार करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं काफी सारे इमोशंस होते हैं जो मैं एक्सप्रेस नहीं करता, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स एनी अदर इमोशन फॉर दैट मैटर। हाउ और मैं बाद में सोचता हूँ कि यार उस टाइम पे बोल देना चाहिए था, गलती करी नहीं बोला। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है उस टाइम पे जो भी बात है एक्सप्रेस कर दो। हाँ, इसमें दोनों बातें ना, कभी एक्सप्रेस करके बाद में अरे मैं क्या क्यों ऐसा बोला, नहीं बोलना चाहिए था। इसका वरुण दूसरा पक्ष भी है। कई बार हम बोल पड़ते हैं, बाद में आके अफसोस करते रहे नहीं बोलना चाहिए था, ये क्यों बोल पड़ा। तो मैं ये कहता हूँ कि एक्सप्रेशन जो है लाइफ में मध्यम में होनी चाहिए। इट शुड बी मिडिल वे। टू एक्सप्रेसिव is also no good and not expressing is at all is also no good. दुनिया में दो तरह की संस्कृति है। द वेस्टर्न कल्चर एक्सप्रेसेस इट टू मच। घड़ी घड़ी में आई लव यू बोलेंगे, घड़ी घड़ी आई थैंक यू हनी हनी बोलते रहेंगे, बाद में सब डायबिटिक हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। हिंदुस्तान में क्या है दिक्कत हमारे साथ, हम एक्सप्रेस ही नहीं करते, अपना बोलते ही नहीं, छुपा के ही रखते हैं दिल में। मैं कहूँगा मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। जैसे एक बीज है, एक बीज को तुम ऊपर रखोगे तो इट वोंट स्प्राउट, एट द सेम टाइम यू सो द सीड वेरी डीप इन द सॉइल, it will not also sprout. How do you have to, what do you do with a seed? You put it and put a little cover on it, so that then it sprouts, it takes roots. In the same way, expression, we must express something, certain other things we don't need to express, that gets expressed in our action. Correct, absolutely. No, very, मैं भी अभी करूँगा. And Guruji, but you know, a lot of people at times they say that they have human fatigue. कि हम एक दूसरे से बोर हो गए हैं, या फिर कोई इंसान दूसरे इंसान से बोर, तो ये एक इंसान दूसरे इंसान से बोर क्यों होता है, और इसको इसके लिए कोई उपाय है कि कोई भी इंसान किसी इंसान से कभी बोर ना हो? क्यों, वो अपने आप से बोर हो गए। जो इंसान खुद की कंपनी में बोर हो जाता है, औरों से भी बोर हो जाएगा, औरों को भी बोर करता रहेगा। तो मैं इसलिए ये कहूँगा कि अपने भीतर का बोर्डम हटाओ, वो तुम ध्यान करने से हट जाएगा। मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपने भीतर लोनलीनेस, बोर्डम, बेचैनी और नफ़रत, एक तरह की अरुचि, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना, ये सारी चीज़ों की दवा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करते ही तुम पाओगे ये सारी चीज़ें अपने आप हट गए जीवन से। खुद ही इतने मस्त रहो कि कभी दूसरा बंदा आपसे बोर ही नहीं हो सकता। फिर तो अगर आप खुद ही इतने मस्त रहेंगे तो फिर कैसे होएगा? नहीं, अच्छा है ये। गुरुजी, यू नो, प्लीज अगर आप थोड़ा सा हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बता सके, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ की क्या मस्ती आप करते थे, एंड were you naughty as a child? Oh yeah, very naughty. I was quite naughty, quite mischievous. मगर मेरे मिस्चिफ से किसी को तकलीफ कभी नहीं होता था ना। ऐसा मिस्चिफ तो करते ही थे, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। I was the youngest in my class, so I had lot of privilege to be more mischievous. Wow. But Guruji, मतलब whenever I have seen you know so much stuff about you, when I met you also right now also, आप हमेशा एकदम काम रहते हैं, and it's so beautiful to see. आपको कभी गुस्सा आता है, या फिर और आप लास्ट टाइम कब गुस्सा हुए थे? देखो, मैं इसका रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ कब किया था, ताकि वो कभी किया होगा। रोज रोज तो करता नहीं हूँ, कई सालों में एक बार गुस्सा आता भी है, ज़्यादा टिकता नहीं है। अच्छा, मैं करता भी हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता है, वो बोल रहे हैं आप तो नाटक कर रहे हैं। मुझे वो सुन के और हंसी आ जाती है तुरंत। मगर ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
मैं कह रहा हूँ लोगों को, मेरे को तो ज़रूरी नहीं पड़ती है, मगर औरों को मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत गुस्सा जीवन में करना अच्छा है, उससे काम चलाना चाहिए, मगर गुस्से को महंगा करो, मुस्कान को सस्ता करो। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, गुस्सा सस्ते में बांटते रहते हैं और मुस्कुराते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए, रोज़ मुस्कुराइए, कभी कभी साल में 1-2 बार गुस्सा भी कर लीजिए, अच्छा है। जीवन नवरसमय होनी चाहिए। बहुत अच्छा, so beautifully put. एंड एक और था मेरा इसमें कि गुरुजी आप हमारे जैसे अपने फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, यू नो हमें हम वो कहते हैं मतलब हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी, लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, इट्स बेटर आप लाइफ अच्छी जियोगे कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो। लेकिन हमें खुद ही अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से एक्सपेक्टेशंस होती है, और अगर मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, कोई भी इंसान एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, तो उसका चार्म चला जाता है पूरा का पूरा। तो उसका क्या करना चाहिए? कर ले, एक्सपेक्टेशन रख लीजिए, क्या है, क्या फर्क पड़ेगा? रखना चाहिए ना एक्सपेक्टेशन। हाँ रख लो, मगर डिसअपॉइंटमेंट के भी जगह रख लेना। तो इसीलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि डिसअपॉइंट होगे। हाँ, यदि हम डिसअपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार है तो एक्सपेक्टेशन भी मंजूर है। गुरुजी वो कहते हैं ना कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये जो भाग्य और जो लक है, ये क्या होता है? भाग्य और लक यही है जब हम समझते हैं हमारी किया कराया नहीं मिला, मगर हम जो हमारी योग्यता है उससे ज़्यादा मिल गया, तब हम कहते हैं हमको भाग्य से मिला। मैं इस काबिल नहीं हूँ फिर भी मुझे ये मिल गया, तो उसको हम भाग्य कहते हैं, ये हमारा लक कहते हैं। और हमको लगता हम इस काबिल हैं और फिर भी जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो बोलते ये हमारा दुर्भाग्य है। बैड लक है कहते हैं ना। तो भाग्य वही है जिसमें जिसको पाकर के हम इतना अधिक प्रसन्न होते हैं, इसको अपना अधिकार नहीं मानते मगर वरदान मानते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं। तो गुरुजी समय से पहले और भाग्य से अधिक वैसे मिल सकता है कुछ? मतलब मैं अगर ऐसे पूछूं कि अगर मुझे समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ चाहिए तो ऐसा पॉसिबल है? समय से पहले मिल जाए तो वही समय है, वही सही समय है, फिर समय से पहले कैसे हो गया? करेक्ट, बिल्कुल। जब मिलता है वही समय है। भाग्य से अधिक मिला तो वही भाग्य है, वो सौभाग्य है। एब्सोल्युटली। तो गुरुजी कोई ऐसी क्रिया होती है जिससे भूख पे कंट्रोल हो जाए? क्योंकि पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वैसी सुलझ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्राणायाम करें तो ध्यान करें तो भूख पर बिल्कुल कंट्रोल आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम वैसे इतनी मतलब आज के टाइम पे जो युवा इतनी डाइटिंग करता है, अलग अलग चीजों पे लगे होते हैं, और मतलब बहुत सी 1600 मतलब बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। मैंने कहा कि कोई ऐसी अगर क्रिया हो मैं तो उससे भूख पे कंट्रोल हो जाए, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम दुनिया की सॉल्व हो जाएगी। वरुण, जब व्यक्ति खुश होता है ना, कम खाता है। जब अकेलापन होती है, बेचैन होता है तो ज़्यादा खाने लगता है। जितना व्यक्ति मन से प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है ना, थोड़े से भोजन से वो खुश हो जाता, तृप्त रहता है। अब आप देखोगे जिनको भी थोड़ा सा लॉन्गिंग हो जाता है, लोनलीनेस हो जाता है, ब्रेकअप हो जाती है, उस वक्त रेस्टोरेंट में जाके बहुत ज़्यादा भोजन कर लेता है, ऐसा मैंने सुना है। करेक्ट। लेकिन गुरुजी हम जैसे पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, हम तो पानी भी पीते हैं, वो अंदर जाके घी बन जाता है। नहीं, वो पंजाबी का वो रखना चाहिए, मट्ठा, आलू पराठा, छोले भटूरे, वो खाने का तरीका ऐसा है, और उसके साथ अच्छे से कसरत भी करते हैं पंजाबी। पंजाब का जो शरीर का डीएनए ऐसा है, इट्स अ गुड मेकअप एंड यू शुड कीप दैट फूड हैबिट। खूब घी पीना चाहिए, मक्खन, साग, रोटी, मक्खन सब अच्छे से खाना चाहिए। गुरुजी बिल्कुल। गुरुजी इसके साथ का ही एक सवाल है अभी मेरे एकदम ज़हन में आया। जिस तरह से as we all know that fitness is so important and you know everyone wants to
गेट फिट, और कई लोग हैं जो उस दिशा में है फिट होने की, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी important to accept and be happy in the current structure or the current way you are. हम अक्सर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं अपनी खुद की बॉडी से. इवन एज एन एक्टर, जब मैं एस्पायर कर रहा था, जब मैं ऑडिशंस के लिए जाता था, मेरे भी कितने आसपास के दोस्त हैं गुरुजी उस टाइम पे भी थे कि वो कहते थे यार अभी मैं ना थोड़ा चबी हूँ, अभी मेरी ऐसी जॉ लाइन नहीं है, तो मैं ऑडिशन पे नहीं जाऊंगा. और मेरा भी उनसे यही मानना था कि कभी जैसे अपने एक्टिंग प्रोफेशन में कि आपको नहीं पता कि डायरेक्टर को या फिर उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को उस समय पे क्या चाहिए. क्या पता उनको चिजल्ड बॉडी नहीं चाहिए हो, क्या पता वो जॉले नहीं चाहिए हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंटेंट एंड टू बी हैप्पी एंड टू लव योरसेल्फ द वे यू आर, ना गुरुजी? हाँ, करेक्ट करेक्ट. It's important that you appreciate yourself the way you are. It is not how you look. What is more important is how you act, how you express yourself. That is most important. At the same time, I would say you should have some discipline in food habits. You should, if you are eating more carbs, you must do more exercise. If there is no time for exercise, then less carbs, more protein. इस तरह से अपना डाइट को हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए. और दूसरी बात यह है, देखिए ये जो कई बार ये डाइटिशियन का सारा ये जो चल पड़ता है ना, आप YouTube में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे. एक कोई बोलेगा लौकी खाओ, कोई बोलता है ये खाना ही नहीं चाहिए, कोई बोलता है सेब खाओ, दूसरा कहेगा सेब बिल्कुल नहीं, छूना नहीं चाहिए. मैं ये कहूँगा सिंपल, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आपके जो पुरख लोग, माने आपके दादा परदादा माता पिता जो खाते आए हैं वो आपके सिस्टम के लिए ज़्यादा अनुकूल है. जैसे पंजाब के लोग जो है ना, पंजाबी खाना ही खाना चाहिए उनको. मक्की का रोटी और साग और मक्खन खाओ तो वो बड़ा अच्छा सूट हो जाता है. राजमा चावल खाओ तो उनको सूट हो जाता है. वही चीज़ यदि तमिलनाडु में कोई उसको नकल करने जाए, राजमा खाते जाए, उनको हजम ही नहीं हुए. करेक्ट. उनके लिए सांबार और राइस ही ठीक है. इस तरह से हमारी जो डीएनए, हमारा शरीर कुछ कुछ भोजन के लिए आदी हो जाते परंपरागत, तो हमें उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है. नहीं, एब्सोल्युटली. हाँ जी गुरुजी, मेरा नेक्स्ट सवाल था कि यू नो हाउ डू यू ओवरकम योर वाइसेस. हर बंदा होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बैड हैबिट्स होती है and they want to overcome that. You know, there is a lot of will obviously that one requires, but how do you incline yourself towards that side that you have to overcome? We know that it is wrong, कि कई चीजें वो पता है कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मन को तसल्ली देते रहते हैं कि नहीं, मतलब चलो एक महीने के बाद से मैं मानूंगा कि ये गलत होगी. तो how do you cut short that journey, or how do you convince yourself, and how do you overcome those habits? Here only the meditation will help a lot. 3 तरह के अपने हैबिट से हम बाहर आ सकते हैं. एक तो हमारे बहुत प्रिय जो भी हैं, माता है या आपके भाई है, बहन है, पति पत्नी या गुरु, किसी को भी प्रॉमिस कर दो मैं ये नहीं करूँगा. फिर वो प्रॉमिस को रखने के ये जो मन में होता है ना, एक प्रतिज्ञा, एक कमिटमेंट, उससे आप उससे बच जाते हो. ये प्रेम से करने वाली बात है. दूसरा है भाई से जान लेना, कोई डॉक्टर तुमको बोल दे तो ये हैबिट तुम एक और बोतल पियोगे तो तुम्हारा लिवर कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, बस जीवन नहीं. तो भाई से कंट्रोल हो जाता. तीसरा है कोई लालच दे दें, कोई कहें तुम्हारा मेरिट्स इतना बढ़ेगा, लक इतना बढ़ जाएगा यदि तुम 3 महीने तक ये बैड हैबिट नहीं करोगे. तो गुड लक का लालच, या अपने किसी प्रियजनों के साथ वादा करने की जो बल, और तीसरा है भय. इन तीनों से हम किसी भी हैबिट से बाहर आ सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही जोक पे बार बार हंसी नहीं आती. तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही गम पे बार बार दुख होता है, या फिर मतलब एक ही किसी चीज पे हम बार बार उसी चीज के लिए रोते हैं? तो व्हाई इज दैट?
हाँ, वो हंसी ऊपर से आ रही है कि दुख नीचे से आ रहा है, बहुत गहराई से. करेक्ट. वाओ. Guruji, again, one more thing is, why is recognition so important for humans? Validation from others, why is it so important? I mean, at times it creates that pressure. हमें बचपन से ही हमको recognition चाहिए हर चीज की, validation चाहिए हर चीज की. Why is it that for human beings, recognition and validation from other human beings is so important? अच्छा वरुण, जब ये प्रश्न उठता है, that recognition, is it very important, तब उसी वक्त हम already it has lost its importance. अब हमको जब तक बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है तब ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि ये इम्पॉर्टेंट है क्या. तब लगता यही जीवन है. जब हमको लगने लगता है कोई हमको इम्पोर्टेंस दे कि रिकग्नाइज करें ना करें फिर भी जीवन चलता है, तो क्या है, इस तरह की भाव आने से तब लगता है अरे क्यों लोग इस पर पीछे दौड़ रहे हैं, इसका क्या इतना वो है. मान लो कोई रिकग्नाइज ना भी करे तो भी हम ठीक है. जीवन में हर एक का कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, हर एक में कुछ ना कुछ खूबी है, सुंदरता है, और वो समय समय पर निखरता रहेगा. और कोई इसको रिकग्नाइज करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है. हम मस्त रहते हैं तो दूसरों के रिकग्निशन पर हम अपना जीवन को आधारित नहीं रखते. Absolutely. And Guruji, like also as humans, we always dream of this, or we keep saying this, that, I want to lead a very fulfilling life. हम अक्सर हमें आसपास के लोग भी कहते हैं या फिर मतलब जेनेरिकली कहते हैं हम लोग कि यार हमको ना एक फुलफिलिंग लाइफ लीड करनी है. When does one know that he or she has led a fulfilling life? When you have a headache, you don't go and ask someone, did I have a headache? जब हमें पाँव में टांग में दर्द हो रहा है तो किसी से पूछते हैं कि अरे भाई ये बताओ मेरा टांग में दर्द है कि नहीं. तो कितना ऑब्वियस होता है. ऐसे ही जीवन में तृप्ति मिलती है तो ऑब्वियस. अच्छा आप भोजन कर लेते हो, उसके बाद कोई और आके बोले और भी भोजन करो, अब क्या आप कहोगे, नहीं भाई मैं तृप्त हूँ. जैसे भोजन की तृप्ति हमको समझ में आ जाती है, ऐसे मन भी जब प्रसन्न हो जाता है, ये रिकग्निशन, दूसरों की ताली, इन सब चीज़ों से हमारा मन तृप्त हो जाता है. अरे भाई ठीक है. हाँ, वो एक अलग तृप्ति जीवन में झलकने लगती है. तो फिर हम लेने वालों में नहीं होते, देने वालों में होते हैं. एक लेने का आनंद है. देखो बच्चों को कोई प्राइज दो तो वो लेने से उनमें कितना आनंद मिलता है. दे हैव so much joy in taking, right? You bring a gift or a prize to children, that's highest for them, they celebrate. So this is the infant joy, the joy of getting. But there is a joy in giving. Like the principal of a college, of a school, she gives the prize to children. When she is giving the prizes out, she has, a nice feeling. वो देने का आनंद पे हमें उतरना चाहिए, तभी जीवन हम कह सकते हैं हम सफल हैं, पूर्ण हैं. So with this, Guruji, there's a very interesting question that I also had is, what is the difference in being religious and being spiritual? Or is there any difference? If yes, then what is that? I see, religion is all external thing, that is your name, your शादी, दाह संस्कार, ये सब रिलीजन को लेके होता है. करेक्ट. मगर स्पिरिचुअलिटी इज द इनर फीलिंग. तुम्हारे भीतर दिल में कितना प्रेम है, कितना शांति है, कितना अपनापन है सबके प्रति, और कितना तुम मस्त हो, ये सब स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी इज दैट which make you smile from your heart. Every child is born a spiritual being.
हर एक बच्चे को देखो तो उनमें स्पिरिचुअलिटी झलकती है, प्रेम है, एक प्रसन्नता है, खुशी है। एक बच्चा जब हंसता है पूरे शरीर के कण कण से हंसता है, गुस्सा करता है तो पूरे शरीर से करता है ना। तो इस तरह ये सब स्पिरिचुअलिटी का अंग है। अब वरुण से कोई भी मिलता है तो उनको लगता है ये वरुण तो बिल्कुल अपनापन में ले लेता है सबको, अपने झपेट में, पंजाबी झप्पी ले ले करके सबको अपना मना लेता है। तो बिल्कुल मैं यही होता है ना। बिल्कुल, मैं अभी वही आपको बता रहा था गुरुजी, मेरे से ना अभी किसी ने पूछा कि आप सबसे पहली चीज क्या करोगे लॉकडाउन या आउटब्रेक के बाद। मैंने कहा मेरे को लोगों को जप्पी पानी है। मैंने 2 महीने से किसी को जप्पी नहीं पाई है, मतलब बड़ा अंदर से खालीपन लग रहा था गुरुजी, बिकॉज हमको आदत है ना हर एक को जप्पी पाने की। और वैसे देखो, तो मैंने कहा जैसे मैं वेट करूं आउटब्रेक पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद मैं जाते के साथ लोगों को जप्पी पाना चाहता हूँ। तो वो बात जो है यही है, ये अध्यात्म है। प्रेम क्या है? सबको अपना मानना, कोई वहाँ पराया नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई किसी को मोलते तोलते नहीं है, हम सहजता में रहते हैं। ये सहजता ही अध्यात्म है। और हर धर्म का मूल अध्यात्म है। कई बार मूल को छोड़ देते लोग, बाहरी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हैं। माने धर्म एक रैपिंग पेपर है, बॉक्स है जिसमें गिफ्ट आ रही है, स्टाइरोफॉर्म वगैरह रखे अच्छे से गिफ्ट पैक है। वो बाहर का पैकेज जो है वो है धर्म है, वो रिलीजन है। उसके अंदर जो चीज़ें आ रही है वो है स्पिरिचुअलिटी। मगर कभी क्या होता, अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पैकिंग मटेरियल होती है। इससे लोग परेशान हैं, इससे लोग दुखी हैं, और युद्ध सब इसी को लेके हो रहा है। बिल्कुल गुरुजी, एक और चीज है जो बहुत लोगों को तंग भी करती है और उनकी आदत भी बन चुकी है और पड़ भी गई है, उसका नाम है वहम या सुपरस्टिशन जिसे हम कहते हैं। ये सुपरस्टिशन जो होती है ये बचपन से कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनिशिएट हो जाती है, मतलब वो ट्रिगर हो जाती है, कई हिसाब से वो डिसिप्लिन भी लेके आती है। तो इज इट what is this superstition, and is it like, do we get it, is it because of the fear of the unknown? देखो, जीवन में जो है ना कुछ मान्यताएं होती है, हम जब मान लेते हैं हम ऐसे होने लगता है। जब हम कहते हैं एक बार छींक लोगे तो अशुभ होगा, मान लिया मन में, तो वह वैसे होने लगता है। फिर कहते 2 बार छींक, अब एक बार तो आ गया, दूसरी बार छींक कैसे लेके आओगे? छींको, 2 बार छींक लिया, अच्छा चलो वो हो गया, सी ठीक हो गया। मन का इतना बल है, हमारे मन में इतना ताकत है, जो हम मानते हैं वैसे हमको होने लगता है। इसी को अंग्रेजी शब्दों में, मेडिकल टर्म्स में प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। वो किसी सचमुच में दवा भी ना हो, आपको कह दें ये दवा है, ये खा लो, वो खा के आप ठीक भी हो जाते हो। इसीलिए अपने चौपाई में भी ना, जो इच्छा करी हो मनुमाई, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाई। तो मन का जो ताकत हम पहचाने, तब हमको लगता कि फिर हम अपना संकल्प सही संकल्प डाल सकते हैं। इसलिए भी मैं कहूँगा ध्यान करना आवश्यक है, तो ताकि हम अपना मन को पहचानें। गुरुजी, ये है कि सब हमें कहते हैं कि ये सीख लो, वो सीख लो, कोई हमें ये नहीं बताता कि सीखना सीख लो। तो सीखना कैसे सीखा जाता है? जो कुछ भी सीखा है वो सब बंडल करके एक साइड रख देना। अरे खाली हो जाए, हम खाली हो जाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Absolutely. एक और सवाल है गुरुजी, why is it like society also says and all everything, why is it so important to go through life with a companion? Whether it's be it with someone, it's your family, it's your friend circle or anything. Why is it so important to go through life with a companion? वरुण, एक बात है यहाँ पर, there are people who are married who have companions, still they are miserable. There are single
There are many people who are spinsters, who are bachelors. They are miserable too. On the other hand, there are people who are single and happy, and there are people who are married and happy. I would say you better come to this other category, whether you married or single, you have companion or not, you must be happy. If you are happy, then you have done. No? Otherwise, if you think only companion will make you happy and you make your companion unhappy, and then in turn you become unhappy, it's not going to work. So, it's your choice, you want to be single or you want to be married. Either case, I would say be happy. Correct. No, because even in that Indian parenting system, it is very key. एक certain age हो गई है, अब तो आपको, you know, it's important that you get married at a certain age. And even like with my friends, like I keep chatting with them and all that, even I feel that it is wrong. I mean, when someone wants to be with someone, is, you know it for your own self, or the other person will know it for your own self. So there should not be any time foundations or age foundations for that. हाँ सही है, तो वैसे सोच सकते हो, ठीक तो है. किसी के प्रेशर में नहीं आके कर ना वरुण. नहीं वही मैं मम्मी को वही बताता हूँ, मैं कहता हूँ प्रेशर में, मैं खुद अभी बच्चा हूँ, मैं अभी कहाँ से शादी करूँ. Guruji, if you allow me, can we play like a very small rapid fire, like your thoughts about fashion? Life should be lived with fashion. Wow, absolutely. Your mantra for happiness? Meditation. Beautiful. Absolutely. Your favorite book? Life. Absolutely. Guruji, a country you love to visit again and again? This world, this planet. Guruji, which is your favorite dessert? मीठे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है आपको? I'm afraid I will not say it. Why, Guruji? Because जहाँ जाऊँगा वही चीज़ खाने को मिलेगी. Okay. What does creativity mean to you? Creativity is part of godliness that is present in you. One tip to be funny. Don't try to be funny. Just be yourself. Absolutely. Thank you so much, Guruji. Thank you. It was so beautiful. And I really cannot just wait. You know, once the entire outbreak gets over, I would love to come and visit you and meet you in person there in the ashram, Guruji.